जुबानों में। वो बात करो पैदा तुम अपनी 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 जुबानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। Jai Bhim, Jai Bharat. It's a great privilege and honor to address you on the 129th birth commemoration of Baba Saheb Ambedkar, one of the greatest visionaries of Indian history. It was a dream of the great Baba Saheb Ambedkar to see a truly democratic and secular India, where the principles of equality, fraternity, and social justice prevail. His teaching and mission was not just for the oppressed masses of India, but his noble path was for the welfare of mankind. All great men think alike. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. These are the words of Dr. Martin Luther King. All great men think alike. One former president, Dr. Abdul Kalam, said, "Every citizen of my nation should have a dream of a developed India. Every Indian should think of that wonderful dream again and again. To make that dream a reality, one has to act. One has to act, nothing but to act." Every citizen of India is indebted to Baba Saheb for his selfless services to India in framing the Constitution. Every woman of India is indebted to him for the writing of the Hindu Code Bill. All the minorities of India are indebted to him for the secular values he installed in the Constitution. All the intellectuals of India are indebted to him because of his peaceful but revolutionary theories on various matters. We are all indebted to our Master and Savior because he sacrificed his whole life for our people who were suppressed, oppressed, and forever in agony for centuries. विश्व में एक वैचारिक क्रांति का मोड़ हो रहा है। ऐसे ही हालात में हमें भी साथ साथ, हाथों में हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले समय में आगे कदम बढ़ाना होगा। आज बहुत मिलेंगे राहबर बनके, लेकिन हमें खुद पता लगाना है सत्य और सही राह की। वो क्या दिखाएंगे राह हमको, वो क्या दिखाएंगे राह हमको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं।
कैसे भविष्य उज्जवल करेंगे वो जिन्हें हमारे इतिहास का पता नहीं। सिर्फ बातें बनाने से, नारेबाजी लगाने से और नई शाखाएं खोलने से और घोषणाएं भी करने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और ये संघर्ष जारी रखना है। नहीं रहना है अधिकार वंचित हमें अब, नहीं रहना है अधिकार वंचित हमें अब, नहीं सहना और नहीं रहना अशिक्षित हमें अब, हमें नहीं सहना कोई जुल्म हमें अब, मिटानी है लाचारी की दीवार हमें अब, मिटानी है लाचारी की दीवार। Jai Bhim. This is Mrs. Manju Lal, qualified naturopath in London, and we are celebrating Dr. Baba Saheb Ambedkar 129th birth anniversary. He struggled all his life for equality and humanity, and I pay my tributes to Dr. Baba Saheb Ambedkar, and also I am sending best wishes to all Ambedkarites all over the world. Jai Bhim, Jai Bharat. I am Dr. Pyarelal, Fellow Royal College of Surgeons of UK. Today we are celebrating Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's 129th Jayanti. On this occasion, we pay tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar, Messiah of Untouchables and Architect of Indian Constitution. We pay best wishes to all Ambedkarites all over the world. Jai Bhim, Jai Bharat, Dr. Pyarelal. सप्रेम जय भीम। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 129वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को, सभी धम्म बंधुओं को, सभी आम्बेडकर अनुयायियों को मेरा सप्रेम जय भीम और सभी को हार्दिक शुभेच्छा। मानव मुक्ति के दाता, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारों को, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उन महामानव को उनके जन्मदिन के अवसर पर कोटि कोटि वंदन। जय भीम, जय भारत। Jai Bhim, Namo Buddhaya. I am Parmeshwar Khope, so happy and humble to extend my heartfelt greetings on the occasion of 129th birth anniversary of our Master, Savior and Pathfinder Dr. Baba Saheb Ambedkar. साथियों, प्रथमतः कोरोना वायरस की महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ने वाली यह जयंती, डिजिटल भीम जयंती, अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और इसी तौर पर विश्व के अनेक जगहों से शुभकामनाओं के संदेश प्राप्त हुए हैं। इसी तौर पर ग्लोबल अम्बेडकराइट कन्वेंशन के साथ कार्य कर रहे सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर से आप सभी को विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के 129वें जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दुनिया के सबसे शिक्षित महामानव, समानता के अग्रदूत और हमारे गौरव विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर
दुनिया भर के संघर्षशील, शोषित व सुषुप्त समाज के सदस्यगण तथा उसके उत्थान के लिए प्रयासरत व संघर्षरत सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई और क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बाबा साहब थे इसलिए आज हम हैं। आज हम खड़े हैं, बाबा साहब इसके लिए लड़े। हमारे पास जो शिक्षा की दौलत है वो सब बाबा साहब की बदौलत है। जो भी समाज में हमारा सम्मान है वो सब बाबा साहब का वरदान है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का सम्मान है और ये संभव है क्योंकि बाबा साहब रचित संविधान है। साथियों, आमतौर पर हम सब इस पर्व को भारी संख्या में एकत्र होकर बाबा साहब को माल्यार्पण कर उनके दिए मार्गदर्शन को आत्मसात करने की कसम खाते हैं और उनके द्वारा दिए गए 3 रत्न शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो पर चलकर हमने क्या प्रगति की, इसका आकलन कर आगे की रणनीति बनाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर में हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करना है और अपने भीम समाज को शिक्षित और सचेत भी करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी भूल से इस महामारी की सबसे भारी कीमत हमारे समाज को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अपने अपने घरों में शाम 7:30 बजे बाबा साहब के जन्म दिवस की खुशी दिए जलाकर मनाएं। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व फोन करके सबको बाबा साहब के जन्म दिवस की बधाई दें। ये दिवस कुछ संकल्प लेने का भी है। सभी सक्षम साथी पीछे छूट गए साथियों को भरपूर मदद कर आगे बढ़ाने का संकल्प लें। प्रत्येक साथी समाज के एक युवक को शिक्षित करने का संकल्प ले। प्रत्येक साथी समाज के कम से कम 10 सदस्यों को बाबा साहब द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से अवगत कराएं तथा प्रत्येक को एक एक संविधान की प्रति भी प्रदान करें। बाबा साहब द्वारा लिखित सभी पुस्तकों का एक सेट हिंदी या इंग्लिश अपने मोहल्ले या गांव में दें और लोगों को प्रेरित करें कि वो उसको पढ़ें। हमारा समाज आडंबर, आस्था व पाखंडों में जकड़ा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि समाज में वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार करें। धार्मिक अनुष्ठानों पर जो व्यर्थ का व्यय होता है उसकी बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार उत्थान के कार्यों पर व्यय करें। अपने परिचितों के जन्म दिवस या अन्य खुशी के मौके पर जब हम जाएं तो संविधान की प्रति या समाज सचेतक लेखकों की पुस्तक गिफ्ट करें। किसी धार्मिक स्थल पर दान न दें। अपनी वार्षिक आय का कम से कम 5% सामाजिक कार्यों में लगाएं। जहां संभव हो वहां अपने प्रयासों से शिक्षण संस्थान संचालित करें या जो संचालन हो रही हैं उनमें भरपूर मदद करें। आपको ज्ञात है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल लेवल की एजुकेशन बहुत खराब स्थिति में है
इसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल के बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसित करने, उनकी रुचि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचार प्रसार करें। समाज के एक नवयुवक को कारोबारी यानी एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करें। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रयास करने वाले, जिनको हम अचीवर्स कह सकते हैं, के सम्मान में आयोजन करें और उसको सोशल मीडिया पर डालें। शिक्षित नवयुवकों के मार्गदर्शन के लिए कैरियर काउंसलिंग की वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया में डालें, यूट्यूब पर डालें, ताकि हमारे नवयुवकों का मार्गदर्शन हो सके। साथियों, सभी संकल्प लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, उसके बारे में जरूर आप सोचें। समाज में रोटी बेटी के संबंध को भरपूर सहयोग करें, उसको बढ़ावा दें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह अपने पूर्व मनोयोग से बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता हूं तथा अचीवर्स फाउंडेशन फॉर सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ट्रस्ट, जिसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूं, के माध्यम से समाज हित के सभी कार्यक्रमों को संचालित करने का भी संकल्प लेता हूं। साथियों, मैं एक बार अपने आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस दुनिया के महान तत्वज्ञानी थे और कई सालों तक उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। सारी दुनिया ने मान लिया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज कोई है तो वे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैं। बहुत ही मुश्किल हालात में बाबा साहब ने खुद की क्षमता को दांव पे लगाकर इस देश की विषमता भरी व्यवस्था को बदलकर न्याय, समता, बंधुभाव भरी व्यवस्था में बदल डाला। जो समाज पीढ़ियों से गुलामी का शिकार बना हुआ था, इस देश की महिलाएं जो पीढ़ियों से पीड़ित थी, उन्हें न्याय देने का, समान अधिकार देने का काम संविधान बनाकर बाबा साहब ने किया। आज के वर्तमान का समाज अगर 21वीं सदी की महासत्ता बनने का सपना देख रहा है, प्रबुद्ध भारत का सपना देख रहा है, तो इसके पीछे बाबा साहब के विचारों की प्रेरणा, उन्होंने दिया हुआ करुणा, प्रज्ञा भरे बुद्ध धम्म की शक्ति है। बाबा साहब ने हमेशा से ही प्रस्थापित सत्ता के साथ विचारों की लड़ाई बुद्धिमत्ता से लड़ी और सोते हुए समाज को जागरूक करके शिक्षित और जुझारू समाज बनाया। आज पूरी दुनिया ने भारत यह युवाओं का देश माना हुआ है। इन युवाओं की आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, इस देश के उन्नति में वे हिस्सा लेना चाहते हैं। यह युवा शक्ति इस देश की सही ताकत है। इन युवाओं में अंडर प्रिविलेज सेक्शन का युवा वर्ग काफ़ी मात्रा में है। उन्हें दिशा देने का काम हमें करना है। उन्हें सशक्त बनाते हुए इस देश के प्रभावशाली वर्ग का हिस्सा बनाने का सपना बाबा साहब ने देखा था। उसे पूरा करने का संकल्प उनके जन्मदिन पर हमें लेना है। भारत देश दुनिया का प्रभावशाली डेमोक्रेटिक राष्ट्र बना रहे, समता, बंधुता और मानवता की मिसाल बना रहे, यह हम सब हमारा प्रथम कर्तव्य समझें। बाबा साहब के इन्हीं विचारों को याद करते हुए देश पर कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए शांततापूर्ण रूप से
हमारे घरों में रहकर मनाते हैं। अनगिनत दिए की रोशनी में बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। वी आर बिकॉज ही वॉज। जय भीम, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं बख्शिश परमार आज के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को बाबा साहब आम्बेडकर जी के 129वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज के दिन सूर्य का उदय हुआ था और उन्होंने ऐसे कई अनगिनत काम किए, मेहनत और लगन से पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण छोड़ गए। लेकिन आज भी हम उनके विचारों से अनजान हैं। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि उनके बारे में और जाने और पढ़े और समझे और नई पीढ़ी को उसके बारे में प्रेरणा दें। आने वाली जनरेशन के लिए एक सही उदाहरण छोड़ जाए। आइए आज का दिन अपने परिवार के साथ खुशी से मनाएं और बाबा साहब आम्बेडकर जी के संघर्षों की रोशनी हमारे घर से फैलाएं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जय भीम दोस्तों, हम सभी लोग 14 अप्रैल 2020 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 129th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर के काम को याद करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, उन सभी को फिर से बाबा साहब के काम के बारे में हम बताएंगे। यही नहीं, पर मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे बांधव, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आज स्लम्स में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। उनके पास पता नहीं कल जयंती सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास खाना भी होगा या नहीं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हर एक व्यक्ति ने अगर कम से कम दो लोगों का अन्नदान अगर वो करें, तो मेरा ख्याल है कि हम सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती जो है वो सही मायने में सेलिब्रेट करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जहाँ तक हो सके हम सभी साथ में आकर अपने साथियों को कुछ हद तक मदद करें और बाबा साहब अम्बेडकर के जो आइडियाज़ हैं, उनका जो एक सोशल जस्टिस और सभी भाइयों को साथ में लेकर जो चलने का जो प्रण था, उस प्रण को कहीं आगे तक लेकर जाएं, एक कम से कम अपना एक छोटा सा हाथ लगाएं उस कार्य को। धन्यवाद। जय भीम। To all of you, Namo Buddhaya and Jai Bhim. The Ambedkarites all over the world, I would like to wish, Ambedkar Jayanti celebrations all over the world. Being COVID-19 is prevailed all over the world, the celebrations being cancelled all over the world. You all know about it. So because of that, you all stay safe at home and let others also stay safe. That is my message to all of you. And one more thing, especially I'm talking about NRIs, since we are living far from our families, so we have to do something to our people back home. We are all celebrating Ambedkar Jayanti all over the world in a big way and spending lots of money. But anyway, the Jayanti has been cancelled all over the world. It is my humble request to all of you, the same amount whatever you are spending for Jayanti, to divert it to some. साथियों, जय भीम। मैं महेश वासनिक अभी नॉर्थ अमेरिका से आप सबसे बात कर रहा हूँ।
नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको 129th बर्थ एनिवर्सरी की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सो हैप्पी अंबेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करती है, अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एंड अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी हर सैटरडे और संडे वर्चुअल मीट करती है। जैसे कि यहाँ पे हर सैटरडे धम्म डिस्कोर्स सीरीज चलती है 11 o'clock अमेरिका का टाइम, 8:30 इंडिया का टाइम, और वर्चुअल ऑनलाइन विहारा हर संडे को 10 बजे 10 साल से चला रहे हैं, और इंडिया टाइम 7:30 PM को ये स्टार्ट होता है। तो मैं आप सभी साथियों को विनती करता हूँ कि ये ऑनलाइन वर्चुअल सेशन में ज्वाइन कीजिए कि हम एक साथ सभी कुछ धम्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम सबका मिशन है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कारवा आगे ले जाना, और इस मिशन के लिए सभी कार्यरत हैं। आज सब 129th बर्थ एनिवर्सरी में आप सभी पार्टिसिपेट हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद, और सभी को हमारी तरफ से एक बार शुभकामनाएं। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय। Namo Buddhaya and Jai Bhim, dear friends. Harshal Ahire here. I feel so honored and proud to send you our greetings on this digital Bhim Jayanti. Jai Bhim. Jai Bhim, Shalaka Ahire here. Our emancipator Dr. Ambedkar has given us legacy of constructive thoughts, and he has laid a foundation of liberty, equality, fraternity for us. Because of his great work, we have made a lot of progress in life. Let us continue to develop ourselves, and also remember to stay together as a society and help others who are still oppressed because of poverty or ignorance. After all, Dr. Ambedkar has told us that a great man is different from an eminent one, in that he is ready to be the servant of the society. जय भीम। मैं डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम, भूतपूर्व रजिस्ट्रार, नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, महामानव तथा विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 129वीं जयंती के पावन पर्व पर मैं भारत के तथा विश्व के तमाम अम्बेडकरवादी, तमाम समतावादी, विज्ञानवादी तथा प्रबुद्ध जनों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयाँ अर्पण करता हूँ। नमो बुद्धाय। On the occasion of 129th birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar, we, the Ghuble family, pay our tribute to the greatest Indian of our time and the father of the Indian Constitution. On this occasion, we wish all Indians and the world to be peaceful and live healthy life. Namo Buddhaya, Jai Hind. जय भीम। मैं शोभना पवार फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब जी की 129वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो फिर इस बहाने हम बाबा साहेब जी के कुछ विचार बांटे। बाबा साहेब जी कहते हैं कि अज्ञानता से भय और अंधविश्वास पैदा होता है और वो इंसान की विवेक बुद्धि शून्य कर देता है, और जिस इंसान की विवेक बुद्धि शून्य हो वो मानसिक रूप से गुलाम है। इसलिए ज्ञानी बनो। चलो तो फिर हम बाबा साहेब जी की इस सीख पर चले और गुलामी की वो सारे पाश तोड़कर बुलंदी की ओर बढ़े। जय भीम, जय भारत।
Dear brothers, sisters, Trivar Vandan to Lord Gautama Buddha on the eve of auspicious occasion of celebration of 129th birth anniversary of Bodhisattva Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar in 2020. I, Praveen Gangurde and Mrs. Pushpalata Gangurde conveying our best wishes to you from Tathagat Cooperative Housing Society, Vashi, Navi Mumbai, India. Before starting Trisharan and Panchashil, we pray for speedy recovery of our brothers, sisters, elders, for speedy recovery from current crisis of coronavirus and also offer our condolence to the departed soul. Now let us start Trisharan Panchashil. Buddham Namami, Dhammam Namami, Sangham Namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tang gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami. I'm so glad to be able to celebrate Babasaheb Ambedkar's 129th birth anniversary in these trying times. Babasaheb represents the spirit of optimism and better times. Who can deny that? What we need now are positive messages. What we need now is to remember how transformative Babasaheb Ambedkar was for our foremothers, our forefathers, and the generations since. I cannot think of a better example of the power of thought and action. Babasaheb's message was educate, agitate, organize. That's what we need to do now in these troubled times. Jai Bhim. जय भीम। मैं हूँ रक्षवी पुणे से। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 129वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर मैं उनकी कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हजारों तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। I am Dhamachari Gyanraja from Pune, India. Wish you all a very happy 129th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, who wanted to create an ideal society based on liberty of thought, expression, belief and worship, equality of status and opportunity, fraternity and social, economic and political justice. नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर विजय कदम आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि ये साल 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब की जयंती आ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया का हाल जो है वो बेहाल है और बाहर आने को सबके लिए हर गवर्नमेंट ने मना किया है, लॉकडाउन किया है, कर्फ्यू लगा हुआ है। इसीलिए मैं सभी मेरे भाई और बहनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये साल हम बाबा साहब की जयंती अपने घर में ही मनाएंगे। कृपया कोई भी बाहर आएगा नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और कायदे में रह के ही बाबा साहब की हम ये जो जयंती है वो बड़ी धूमधाम से अपने घर के अंदर ही मनाएंगे। हम बहुत अलग अलग तरीके से घर में रह के भी बाबा साहब की जयंती मना सकते हैं, जैसे कि बाबा साहब के हम पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं जिसको ड्राइंग की आदत हो, हम बाबा साहब के बुक्स पढ़ सकते हैं, हम महात्मा फुले जी, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बुक पढ़ सकते हैं और हम बाबा साहब के लिए ये अभिवादन कर सकते हैं। और मैं यही भी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट आपको करता हूँ, जिनको पॉसिबल है वो ब्लड डोनेट करके अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाथ बढ़ा सकते हैं तो ये हमारे
बाबा साहब के लिए और हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात होगी कि हम हमारा ब्लड डोनेट करके बाबा साहब की जयंती ये साल सेलिब्रेट करें। इसीलिए मैं फिर से सभी को निवेदन करता हूं कि कोई भी अपने घर के बाहर ना आए, अपने घर के अंदर ही हम रोशनी करें, हम अच्छे व्यंजन बनाएं और घर के अंदर ही बाबा साहब की जयंती मनाएं। अच्छे बुक पढ़े, ध्यान धारणा करें, विपश्यना करें, ड्राइंग करें और घर के अंदर ही बाबा साहब की जयंती मनाएं। और इस तरह घर में ही बैठ के ऑनलाइन जयंती का श्रेय भी दुनिया में पहली बार हम बाबा साहब के लिए देंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो Dear friends, Namo Buddha. I am Dr. Rahul Bali from India. 14th April being the birth date of great Bharat Ratna, Dr. Bhimrao Ambedkar, who always believed that all human beings are equal. All those who suffer because of social and economic disadvantages across the world feel proud in celebrating his birthday. In the outbreak of coronavirus, all believers in the ideals of liberty, equality, and fraternity will be celebrating his 129th birthday online. To pay homage to Baba Saheb Ambedkar, Buddhist monks and his followers across the world are already helping the poor and needy by serving food and essentials to them. Our brave medical professionals and workers are attending the COVID-19 patients in the hospitals and helping the citizens and the government of India. On this great day, I appeal to all those who can afford should come forward to help in whichever way they want to. Stay home, stay safe. I thank respected Shri Gautam Chakravarti ji to take this initiative to celebrate Baba Saheb birthday online. Jai Bhim, Jai Dear all, Jai Bhim, Namo Buddhaya. I am Milind Osamul from New York, wishing you all on this 129th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, our Messiah. This year we are forced to celebrate Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti from the confines of our home because of the COVID-19 pandemic. Even here in New York, where we celebrate every year in lot of romp and vigor, Babasaheb Jayanti, usually attended by around 100 families or even more sometimes. This year we are also forced to celebrate it online, but we will celebrate it online and we will celebrate with the full attendance. So given this situation, I think we will still come out of it much stronger, much wiser, much enlightened and very united if we take this opportunity to read Dr. Babasaheb Ambedkar's writings and reflect on his thoughts, because I firmly believe that the solution to our problems and the way forward is all charted out by Baba Saheb, and we should take this opportunity to acquaint with that and get a direction of going forward. Having said that, there is another thing that is of very grave concern in these challenging times. It is about the migrant workers, the daily wagers, the laborers, the people who are on a hand-to-mouth existence on a daily working schedule. They have been very badly impacted in India by the lockdown, and unfortunately not much is being done on their front. Whatever is being done is too little, too late. So it's also time for all of us to come together and to join hands and see in whatever form and way we can help out the situation and give some relief to these vulnerable and affected folks. We here in New York are fine. So far we are doing well. We are all under the lockdown within our homes. And once again, we observe these couple of things of reflecting on Baba Saheb's writings and acquainting with his thoughts, as well as about helping out the vulnerable folks. I don't think there is any better way of paying tribute to Baba Saheb on his Jayanti. Thank you. Stay safe, stay healthy, stay connected, stay united. And Jai Bhim, Namo Buddhaya, Jai Bharat.